कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Hari Nam Sankirtan Yajna की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय Hare Krishna. Thank you, Meenakshi Mataji. Such nice kirtan. So nice to see Vishnu Gaurang Prabhu also. So we'll start our evening Bhagavad Gita session. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deva Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarthi Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gautama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Jagat Guru Srila Prabhupada Jai. Hare Krishna. So thank you for joining in our evening session. So we are at 2.41. Okay. Anybody would like to recite 2.41 words? Please raise your hand. Okay. Yes. Ashok Prabhu, Asha Mataji. Hare Krishna Prabhu Pranam. Reading Bhagavad Gita verse 2.41. व्यवसायित्मकता बुद्धिर एकर कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतस्ते बुद्धियो व्यवसाय नाम. Hare Krishna. Thank you so much, Ashok Prabhu. So, no one else? Okay. So we'll start with the verse. व्यवसायित्मिका बुद्धिर एकहीन कुरुनंदना बहुशाखा हि अनंतश्च बुद्धेहो अव्यवसायिनाम. व्यवसाय आत्मिका, resolute in Krishna consciousness, intelligence, eka, only one, iha, in this world, Kurunandana, O beloved child of Kurus, Bahushakha, having various branches, he, indeed, Ananta, unlimited, Cha, also, Buddhaya, intelligence, Avyavasayanam, of those who are not in Krishna consciousness. So, translation and prepared by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Jai.
So translation: those who are on this path of resolute purpose. Sorry, those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. व्यवसायिक मित्र बुद्धिर एक ही गुरुनंदना. इसको जो प्रभुपाद है वो गुरुनंदन, कितना अच्छा उसका देखिए ट्रांसलेशन कर रहे हैं. गुरुनंदन, ओ beloved child of Kurus, qualified गुरुनंदन as beloved child of Kurus. और इसमें वर्ड आया है व्यवसायित्मिका बुद्धि. What is so special about a व्यवसाय means व्यवसायित्मिका बुद्धि means like a buddhi of a, you can say व्यवसाय जिसे businessman होता है, like this. So what is so special about a businessman? व्यवसायित्मिका बुद्धि. Why we are saying व्यवसायित्मिका बुद्धि? What is so special about those who are money minded, business minded, और जिसे बोलते हैं कई बार कि ये व्यापारी है, उनके लिए क्या स्पेशलिटी? What is so special? Okay, yes, Amit Prabhu. जी, they every time, all the time they think of their business only. That's Okay, little correct, but still more. ये सब businessman मेरे हाथ उठाया है सबने. Yes, Mohit Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Every time the aim is only to make profits. Yes, every time the idea is to make profit, because everything they measure in money. Everything is measured in money, like this, and their goal is to see whether it will be profitable or not. And the goal is so. इसी तरह से ये जो word यहाँ पर आया है, रॉनी प्रभु ने लिखा है, they are very resolute for profit, for making profit. Correct. So they are focused on making profit. So similarly, one should also have, the devotees should also have a buddhi like this. Why should they have a buddhi like this? Vyavasayitmika buddhi. Those who have not answered, they raise the hand. Devotees की बुद्धि ऐसी क्यों नहीं चाहिए? एक व्यवसायी की तरह, एक व्यापारी की तरह क्यों होनी चाहिए बुद्धि उनकी? Yes, अशोक प्रभु. जैसे एक व्यापारी का मोटिव होता है to make profit from the business, likewise एक devotee should have same faith या focus to achieve the Lord. Yes, but थोड़ा सा और क्लियर करिए आंसर को. तो जी जैसे devotee को मतलब जैसे उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव is to get love of God. Money. So devotee का क्या होना चाहिए? To obtain love of Godhead, भगवान का प्रेम, या to take shelter of the lotus tree. Okay, ठीक है. 60% 70% अशोक प्रभु ने दे दिया आंसर. और बताइए मुझे, what is the analogy with the devotee? Who will tell? Raise your hands. कि भक्तों का इससे क्या कंपैरिजन है कि जो भक्तों की बुद्धि है वो भी एक व्यापारी की तरह होनी चाहिए. Yes, Mohit Prabhu. Hare Krishna Prabhu. That devotees should hanker to inculcate more and more Krishna prem within their hearts. Okay. Or anybody else? Yes, Ankita Mataji. बिजनेसमैन बहुत डिटरमाइंड होते हैं कि अपनी एक्टिविटीज को लेकर कि उनके प्रॉफिट अर्न करना है, वो गोल होता है उनके सामने. तो सिमिलर वे डिवोटीज शुड आल्सो बी डिटरमाइंड टू अचीव देयर गोल, व्हिच इज सर्विंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा. Okay. Thank you. Yes, Kamal Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु जी, जैसे बिजनेसमैन का एक गोल होता है प्रॉफिट के लिए, वैसे डिवोटीज का भी एक गोल होता है कि हमें बैक टू गॉड हेड जाना है. तो वो भी एक तरह से एज ए मतलब डील है कि ये हम यदि कृष्णा कोशिश करेंगे तो हम बैक टू गॉड हेड जाएंगे. ये इन्होंने भी और माता जी ने इनका आंसर मिला के 70-80% आ गया है. अभी भी वो लास्ट का जो मैं सुनना चाहता हूँ वो नहीं. यस, रमेश गौरव प्रभु.
Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Am I audible? Hare Krishna, we can't hear you, Mr. Gaurang Prabhu. Can you be a little louder? Hare Krishna, Prabhuji. Is it better? Yes, now we can hear you. प्रभु जी जैसे एक व्यावसायिक जो होता है he constantly monitors the progress कि अभी मैं यहाँ पर था तो next मेरी progress क्या हो रही है, इसी तरीके से devotee को भी अपनी progress check करते रहने चाहिए and he can assess whether he is moving in the right direction and then take experts advice as well. Okay. Okay. यहाँ पर chat पे लिखा है नेहा माता जी ने profit and best use of lifetime. Okay. मोहित प्रभु ने लिखा है devotees should always anchor to inculcate more and more Krishna prem. Ronnie Prabhu has written faith is the key in Krishna consciousness. A strong faith will help. Okay. Yes, Amit Prabhu. Two things. One is devotees should also have one aim to have to be engaged in Krishna consciousness in the loving service. And number two, Prabhupada says that there should be two things: always remember Krishna, never forget Krishna. So that should be the mood of the devotee. No, Prabhuji, we are asking analogy comparison with a businessman. Okay, what is the analogy with a businessman? You know? Just like a businessman always busy in making money, he should be always ready in rendering service to the Lord, to be always engaged in the service. 95 तक आ गए हैं. Okay. Ankita Mataji saying businessman is never satisfied. Yes, that is also in good comparison. सारे point ठीक हैं. ये सारे बहुत अच्छा point है ये कि और मीनाक्षी माता जी ने लिखा है डेडिकेशन एंड सीरियसनेस. ओके माता जी. और कौन है? हरे कृष्ण. आरजू माता जी से है. ओके. आरजू. ओके. यस आरजू माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. आई फील जैसे बिजनेसमैन होता है वो अपने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के लिए भागता है पीछे और उसी से वो प्रॉफिट्स कमाता है. मतलब अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है उनकी सर्विसेज से सो देन ओनली द बिजनेस प्रॉस्पर्स. सो दैट्स हाउ हमें भी अपनी कृष्णा भक्ति में कृष्णा की सेटिस्फैक्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. देन ओनली वी कैन प्रॉस्पर टू द हायर to the heavenly abode or to the Vaikunt, to the Bhagavad Dham. I feel very nice. Ronnie Prabhu, we should make the whiteboard and write. इतने सारे point आए हैं. They're such nice points. Can you make? You remember? Ronnie Prabhu? Should I make? Yes, yes, please make. There's so many of them. Such Okay. nice. Okay. Yes. और कौन है? आशा माता जी, अशोक प्रभु, who has raised the hand? हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी एक पॉइंट तो जैसे भी माता जी ने बोला कि हमें कृष्णा को सेटिस्फाई करना ही हमारा गोल होना चाहिए कि हम उनकी हैप्पीनेस के लिए करें, जो भी करें उनकी हैप्पीनेस के लिए करें. और सेकेंडली हम जो मटेरियल बॉन्डेज है उससे ऊपर उठ जाएं. मतलब ओके 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 माता जी. हरे कृष्ण सर. यस नेहा माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. आई जस्ट जॉइन तो आई डोंट नो ये पॉइंट अगर रिपीट हो गया तो जैसे एक बिजनेसमैन दिन रात बिजनेस के बारे में ही सोचता रहता है तो वैसे ही सिमिलरली दिन रात वी कैन थिंक अबाउट कृष्णा. जो बिजनेस वाले हैं उनको सब पता है कि क्या 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 हो रहा है. यस यस. बीच में संगीता माता जी ने बोला था. संगीता माता जी बताइए. हरे कृष्णा. संगीता माता जी आप बोल रहे थे कुछ बीच में. हरे कृष्णा प्रभु जी. नहीं मैं सुन ही रही थी अभी समझ रही थी. हरे कृष्णा. ओके. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. सॉरी प्रभु जी फॉर इंटरव्यूइंग. प्रभु जी जैसे आज माता जी ने बोला ना लाइक as a businessman tries to satisfy his customers and she also said we should satisfy to Krishna and we can add we should also try to satisfy our spiritual master which is very important and that helps us in progressing further. Okay. Okay. Yes, Mr. Gaurang Prabhu, you have raised the hand. No, Prabhuji, I think it is from the previous one only. Okay. So we got so many of them. और उसके बाद मीनाक्षी माता जी ने लिखा है 6 हो गया था. और ये अंकिता माता ने लिखा है
this is brought to 99.99%. Ankita Mataji written, businessman sees profit in every activity of life. Same way devotee should see Krishna in all activities. So very right. 99.999 पे आ गया है. So and they're all right. All of them are correct. They are very wonderful. अलग-अलग points देखने का. और what I had in mind was कि जैसे एक businessman है, he sees, जैसे माता ने लिखा है that he sees profit in everything. Okay, he sees profit in everything. इसमें नफा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है. इसी तरह से भक्त को हर एक चीज में देखना चाहिए कि by doing what I am doing, am I making spiritual progress or not? That was what was in my mind. But what you shared is also very wonderful points, all of them. और रोनी प्रभु आप चैट से भी कॉपी कर लीजिएगा. चैट में बहुत सारे नोटिस लिखा था. और आप पढ़ते रहिए जो रोनी प्रभु लिख रहे हैं. अगर आप में से किसी का कोई पॉइंट नहीं लिखा तो प्लीज आप बोल के लिखा दीजिएगा. ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस वेबसाइट में का बुद्धि कि हाउ वन एंड वी कैन सी. इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दीजिए रोनी प्रभु. यू नो, सो ऑल ये जो पॉइंट्स हमने सारे के सारे लिखवाए, ये सारे के सारे जो हैं दे आर ऑल वेरी राइट. कि इसीलिए लिखा है व्यवसायिक में का बुद्धि. वन शुड हैव दैट बुद्धि. उस तरह से होनी चाहिए. और हमें पता चलना चाहिए कि ईच स्टेप. और किसी ने लिखा था आप में से शायद कि वो कि one is very hungry for profit, so one should be also hungry for Krishna consciousness. Then somebody devotees at different points, resolute in making profit, or devotees was told that anchor more and more, inculcate more and more Krishna. So it's not so much about Krishna prem. It is so much. It is more to do about कि इसमें मेरा क्या फायदा है. कि हर एक जैसे व्यवसायी जो है एक व्यक्ति वो यही सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है. तो इसी तरह से डिवोटी को सोचना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ या जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ इसमें कोई मेरा स्पिरिचुअल फायदा है कि नहीं. लाइक दिस. सो दिस हाउ वी शुड सी दिस व्यवसायिक में क्या बुद्धि है. सो हमें जो अपनी बुद्धि है वो एक बिजनेसमैन की तरह बनानी है और देखना है कि हमें इसमें हमारा स्पिरिचुअल फायदा है कि नहीं. ऑलवेज सी स्पिरिचुअल प्रॉफिट. व्हाट इज माय स्पिरिचुअल प्रॉफिट. और अगर आप अपना स्पिरिचुअल प्रॉफिट देखेंगे सो इट इज नॉट बीइंग सेल्फिश. somebody can say it is being very selfish. It is not selfish because अगर हम अपना स्पिरिचुअल प्रॉफिट देखेंगे तो जो हमारे आसपास के हैं सब they will also be feel benefit because it is not कि हमारा स्पिरिचुअल प्रॉफिट हो रहा है तो किसी का स्पिरिचुअल नुकसान हो रहा है. ऐसा नहीं होता है. It will bring auspiciousness all around us. So is it done, Ronnie Prabhu? बस यही 4 point. But I thought there were so many of them. Prabhu, yes, there were. हाँ. So आप देखिए हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं. मैं भी भूल गया, प्रभु जी भी भूल गए. So और बताइए जिसका पॉइंट नहीं लिखा गया यहाँ पर प्लीज अपना पॉइंट शेयर करिए. यहाँ पर यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. जो किसने पॉइंट बोला हो और हमने ना लिखा हो प्लीज. हरे कृष्णा प्रभु. सॉरी, क्वेश्चन क्या था? मैंने अभी ज्वाइन किया जस्ट. क्वेश्चन ये था माता जी कि लिखा है व्यवसायिक में का बुद्धि. तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि व्यवसायिक में का मतलब व्यवसायी की तरह जो एक बिजनेसमैन है तो कैसे, तो डिवोटीज का उनसे क्या रिलेशन है. तो ये सारे पॉइंट्स जो भक्तों ने बताए हैं सारे के सारे कि कैसे जैसे एक व्यवसायी है वो बिजनेस के प्रॉफिट के लिए ढूंढता है तो जो भक्त हैं उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस पे ढूंढना चाहिए. या वो हर एक में मुनाफा देखते हैं तो हमें भी अपना स्पिरिचुअल प्रॉफिट देखना चाहिए हर एक चीज. तो वो सारे पॉइंट जो भक्तों ने लिखवाए वो लिख रहे हैं. तो प्रभु जैसे बिजनेसमैन इन्वेस्ट कम करता है, प्रॉफिट ज्यादा उसका माइंड चलता है वहां पे. ओके. तो उसका भक्ति से कैसे कंपेयर करेंगे माता जी? भक्ति से प्रभु जी हम लोग एक्टिविटीज मतलब कि हमारी वो होनी चाहिए कि जिससे हमारा जो है इसको कैसे कह सकती हूँ मैं,
जस्ट लेट मी थिंक प्रभु। थिंक, हाँ। और ये पढ़िए माता जी, पॉइंट से इन्हीं में से निकल के आ जाएगा। देखिए ये बहुत सारे भक्तों ने बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। सो डिवोटीज, किसी का पॉइंट रह गया हो तो प्लीज यहाँ पर बताइए। वी वैल्यू ऑल योर इनपुट। जितने भी सबके पॉइंट्स है बहुत अच्छे थे पॉइंट सारे के सारे। सो अगर किसी ने कुछ बोला हो पॉइंट और यहाँ जो रोनी प्रभु लिख रहे हैं उसमें कोई मिस हो गया हो तो प्लीज अनम्यूट करके बता दीजिए। Hare Krishna Prabhuji, constant check on the progress, just like a normal businessman. रानी प्रभु, अंकिता माता जी ने लिखा है चैट पे, बिजनेसमैन इज डिटरमिन्ड टू अचीव गोल। हाँ, अच्छा लिख लिया आपने। Businessman is never satisfied. This is very nice. हरे कृष्णा प्रभु। यस, जैसे हम इसको लाइफ टाइम से भी रिलेट कर सकते हैं, जो मैंने पॉइंट बोला कि हमें बहुत सारी लाइफ टाइम में नहीं अपना वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जस्ट छोटे से हमें बहुत बड़ा गोल मिल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस। ओके, माता जी कह रहे हैं कि जैसे बिजनेसमैन चाहता है कि मैं थोड़ा लगा के ज्यादा मिल जाए, तो जैसे हमारा जो कल का वर्ष था कि 2.39 जो हमने कल का वर्ष किया था 2.39 के अंदर कि इसमें कोई नुकसान नहीं है और ये ऐसा बिजनेस है जिसमें फायदा ही फायदा है, क्योंकि सो वी कैन सी लाइक दैट। माता जी जो कल 2.39 था, मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ। 2.39. Thus, I have described the knowledge to you through analytical study. No, sorry, it was 40. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from. तो इसमें कोई घाटा नहीं है, ये फायदे, क्या कहते हैं, फायदे का ही सौदा है। ये 2.40 में था। तो इसी तरह से जो बिजनेसमैन है वो कोई ऐसी एक नया पॉइंट मिल गया माता जी कि जो बिजनेसमैन है वो कोई जिसमें घाटा, जिसमें फायदा हो वही लगाता है, और ये जो कृष्ण कॉन्शियस है, भगवान की भक्ति है, इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। और एक जो माता जी ने बोला है, रोनी प्रभु ये बोला है कि बिजनेसमैन कम पैसे लगा के ज्यादा करना चाहता है, और भक्ति में भी, पर इस भक्ति में ऐसा नहीं माता जी कि कम करके ज्यादा नहीं मिलता है। नहीं प्रभु जी, मेरा जो पॉइंट है वो ये कहने का था, जैसे कि हम हर लाइफ में मतलब कि हमें बहुत लाइफ अपना करनी पड़ेगी, हम एक ही लाइफ टाइम में अपना गोल जो है हमें मिल सकता है, उसमें बहुत सारी लाइफ टाइम हमें नहीं वो करनी पड़ेगी कि हाँ इतने जन्म करोगे तभी आपको आपका गोल अचीव होगा। और तो इसकी बिजनेसमैन से क्या तुलना है माता जी? बिजनेसमैन से भी ये कि जो वो कम इन्वेस्ट करता है ना और प्रॉफिट ज्यादा। अच्छा, तो ये कह रहे माता जी ये भक्ति योग है कि उसमें आपको जन्म जन्म तक, हाँ ठीक है माता जी, थैंक यू। अब मुझे समझ में आया, सॉरी माता जी, मेरी बुद्धि छोटी है। सो माता जी कह रहे हैं कि बाकी किसी भी तरह में आपको जन्म लग सकते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते, बट इसमें आप इसी जन्म में भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। थैंक यू माता जी। यस सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु आपने हैंड रेज किया हुआ है? प्रभु जी मैंने किया है। यस माता जी आप बोलिए। प्रभु जी जैसे कई बार बिजनेसमैन 2 शिफ्ट में काम करके ऑर्डर पूरा करता है, समटाइम्स गेट्स इट, सो आई थिंक वी शुड गिव एक्स्ट्रा टाइम वो करने के लिए, जैसे थोड़ा। ये मैंने मैसेज प्राइवेटली चला। ओके, तो माता जी कह रहे हैं कि जैसे बिजनेसमैन है वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए डबल शिफ्ट में काम करता है, तो जो भगवान के भक्त हैं उनको भी डबल शिफ्ट लगा के 32 राउंड करने चाहिए, एटलीस्ट एकादशी वाले दिन तो करने चाहिए। यस नेहा कुमार माता जी आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो एक और एनालॉजी हम बिजनेस से ये लगा सकते हैं कि बिजनेसमैन जैसे अनसर्टेनिटी इज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ,
so he knows how to manage uncertain business environment. So we also know in bhakti also we know it's all dependent on Bhagwan's mercy whether we get what we desire. We have to obviously accumulate our karmas, but we don't know where it depends on his mercy. So we should be familiar with like uncertainty. I don't know. थोड़ा मैं उस तरह सोच रही थी, but I don't know. It is okay, but it is stretching little further. कि Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Businessman is always very clever, and he knows whom to contact, the right person, so that he could increase. So here we can say who is the right guru, where he can contact and get the benefits. Very nice, Mataji. रोनी प्रभु इतने क्वेश्चन इतने तो आंसर हमारे भक्ति शास्त्री में नहीं आए होंगे जितने हमारे पास डिवोटीज हैं. Yes. तो देखिए कितने सारे निकाल दिए इन्होंने. A B C D F G H I J K. Okay, thank you माता जी, very nice. और आपने और संगीता माता जी का भी ले लिया था डबल शिफ्ट वाला, वो भी ले लीजिएगा. और okay, on chat we have so many of them. Okay, संगीता माता जी ने लिखा है डबल शिफ्ट का. Okay, then अंकिता माता जी ने और ढूंढे हैं. At the time of death also businessman keeps thinking of business. Yes, very good. Okay, और शीला माता जी ने लिखा है businessman is always thinking and planning how to achieve profits. Yes, माता जी. Then Ritu Ahuja Mata ji has written, a businessman keeps thinking day and night about his business and about its profit. Similarly, a devotee should keep thinking about spiritual progress. Jai, very nice. Ankita Mata ji has put more. Even if there are losses, businessman doesn't leave the business. Same way, devotee should never leave Krishna consciousness, even at a time of distress. Very, very nice, Mata ji. Nandita Mata ji's business loves his business. Oh, businessman loves his business. So in the same way, devotee love Krishna business. Yes, in similar way, devotees love Krishna. Very nice. इसको कर दीजिए A से Z तक पहुंच गए. इसको थोड़ा सा पुश धक्का लगे गाड़ी को A से Z तक. Hare Krishna Prabhuji, can I speak one more? Sure, Mataji. So businessmen always throw parties and do meetings with the people where he can see the profit. So same here. A devotee can meet other devotees to get the benefits or profits, whatever. Okay. कहने जैसे व्यवसाय की बुद्धि है कि वो he throws. This is the nectar of instruction में भी प्रभुपाद लिखते हैं कि 4th verse में कि जब businessmen है they meet together, they join same clubs and all that ताकि जान पहचान बने और business contacts बने. इसी तरह से हम भक्तों में भी देख सकते हैं कि they should also meet. They should meet, exchange ideas, and they can also develop and progress further in Krishna consciousness. Very nice. Thank you, Mata. Okay, Kamal Prabhu. यस प्रभु जी, एक लास्ट पॉइंट प्रभु जी जैसे बिजनेसमैन सोचता है कि हम अपने बिजनेस को अपने फैमिली के लिए, पीछे अपने बच्चों के लिए आगे इसको इस तरह से ग्रो करके जाए कि बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करता रहे. इसी तरह भक्त भी, डिवोटीज भी यही सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतनी एडवांसमेंट करनी चाहिए कि वो और ज्यादा ग्रो करें. देखिए ये भी एक पॉइंट है कमल प्रभु का कि वो अपने जो है बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहता है धन दौलत, तो और उनको भी बिजनेस में लगाता है. तो इस तरह से जो एक भक्त है he also should make his family Krishna consciousness को लगाए. हरे कृष्णा प्रभु. जैसे बिजनेसमैन जो होता है उसके ऑपोजिशन में जो भी हैं, मतलब कि उन बिजनेस को आगे नहीं बढ़ने देता, वो उसका ये होता है कि उसका बिजनेस ही आगे प्रमोट होता रहे. तो उसी तरह डिवोटीज जो से हैं, जो भक्त नहीं अभक्त हैं, जो मतलब कि आप कर्मकांडीज और इनको उन्हें प्रमोट नहीं करता है, वो अपनी भक्ति का प्रचार इतना करता है कि जो कर्मकांडीज का ये सब जो से हैं वो फीके पड़ते हैं. ओके, ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं.
रोनी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये सब बिजनेस वाले आगे आ रहे हैं, देखिए ये वही प्रभु या बिजनेस वालों के वाइफ्स, ये सब वही आगे, उनको पता है कहाँ है टेस्ट। यस प्रभु। As businessmen keep on moving with positive attitude and firm determination that one day he is going to achieve profits, though the environment is uncertain. Similarly, in the path of bhakti, we need that positive attitude and determination that we will progress further in Krishna consciousness and we'll be able to achieve Krishna one day. Very nice. Can I say one? Sure, Mataji. You are also a businessman's wife. सब business वाले आगे आ रहे हैं, देखिए यही कृष्णा कॉन्शियस में आगे चलेंगे। Yes, Mataji. प्रभु जी, जैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाता है और अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, ताकि उसके कंट्रीज में पार्टीज बने और ये सब बने। द सेम वे एज शिला प्रभुपाद डिड, जैसे वो यहाँ से उन्होंने अपना ये जो मिशन शुरू किया to make all the globally, like he wanted to make all the people under Krishna consciousness. So it's just like that. Okay, thank you, Mataji. Hare Krishna. Yes, one more. Yes. There is comparison between business and gambling. There is different comparison between business and gambling. In business, what happens? When it stables, it keeps on growing slow, and in gambling, it may fluctuate or may come down immediately. Similarly, business is like bhakti yoga, and gambling is like the other processes. If something happens, and it has totally gone zero. मुझे नहीं समझ में आया क्या हुआ प्रभु जी, मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा से बोलिए। बिजनेस में क्या हुआ? Business, if we start a business, it goes at a same phase. ऐसा नहीं है कि fluctuation बहुत ज्यादा नहीं आता, थोड़ा fluctuation आता है. It keeps on increasing slowly, और उसमें एकदम fall down का chances नहीं होते. But in case of gambling, it may immediately come to zero. Similarly, I am comparing business as a bhakti yoga and the gambling at the other processes of spiritual path, in which if we leave this body and it is totally gone. पर ऐसा नहीं है प्रभु जी कि बिजनेस में एकदम जैसे आप बोल रहे हैं कि स्लो चलता है और धीरे धीरे ग्रो करता है, ऐसा नहीं है। आप देखिए अभी लॉकडाउन के अंदर कितने सारे बिजनेस बंद हो गए थे, कितने लोगों के जिनका बिजनेस हॉस्पिटैलिटी का था या कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें फिजिकल जाना, तो दे क्लोज्ड। इसी तरह से जब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आता है, सो मेनी बिजनेस गेट क्लोज्ड। सो we can't say कि business is always slow and increases. मतलब I'm saying जो आपका basic premise है कि business always grows but gradually, ऐसा नहीं है। It is not a universal. But Prabhuji, if we compare with gambling and all, उसमें तो we can't compare to gambling Prabhuji. We are comparing business with the कि जो businessman की बुद्धि है और जो भक्त की बुद्धि है, उसमें हम analogy ढूंढ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? We are doing a comparison between business, how a businessman thinks, and how in similar terms a devotee should also think like that. ये ढूंढ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस सॉरी प्रभु जी 2 पॉइंट्स। प्रभु जी, जैसे एक बिजनेसमैन होता है, उसको अपने गोल अचीव करने के लिए ही वर्क्स इन ए टीम, he keeps employees and he shares his plan and they work together to achieve that particular goal or profit. So likewise, if devotee also keeps a association of senior devotees or other devotees, then he can also make progress in bhakti. So association, I'm comparing business analogy wise that. Very nice. And Prabhuji, U V W X Y Z. Yes. Prabhuji, sorry Prabhuji, one more point. Just and like in any business, we need to at least invest some money to start the business. But in Bhakti Yoga, there is no money required. Only thing is we just need to tell but people. But we do same comparison. नहीं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है प्रभु जी की भक्ति में कुछ नहीं चाहिए होता। भक्ति आपको सेम ढूंढना है प्रभु जी। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस शुरू होने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है ना? और इसी तरह से भक्ति शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा क्या है बताइए मुझे? पैसा है श्रद्धा। ओके, सो ये कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, भक्ति शुरू करने के लिए अदाऊ श्रद्धा, देन अदाऊ श्रद्धा,
then Sadhu Sang, Sadhu Sang, then Bhajan Kriya. So it starts from Shraddha. So one needs that currency to start. Got it. V पे आ गए, V X Y Z. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Prabhu, just like a business has principles like do's and don'ts to follow, similarly the bhakti also has the do's and don'ts to follow to make progress. वाह, जब नियम कह रहे हैं, do's and don'ts are there in business. There are some basic do's and don'ts. Don't buy at a higher cost and sell at a lower cost. So similarly, in Bhakti Yoga also we have do's and don'ts. और Ronnie Prabhu ने लिखा है, business requires continuous investment of money, ideas and resources. Similarly, Krishna consciousness also requires constant watering of Shravanam Kirtanam. Very nice, Ronnie Prabhu. Very, very nice. W. See, when we churn anything, so many things come up. You know, in my wildest imagination, I couldn't imagine there will be so many points. और आप सब लोगों ने देखिए कितने सारे पॉइंट निकाले. 2 बच गए हैं. जिसको याद आएगा बाद में, वो रॉनी प्रभु को बता दीजिएगा कि हमारी ABC पूरी हो जाए, A से लेके C तक. So we don't want to stretch unnecessarily, but देखिए कितने सारे निकल के आ गए. 20-25 पॉइंट हमारे निकल के आ गए कि कैसे the difference between analogy between a इसको Ronnie Prabhu, maybe later on we can make it into a table, and we can give the duty to somebody. Somebody can make, maybe, Ankita Mataji or anybody, just make a table and we can see this is a process driven by a businessman. और उसी के आगे लिख सकते हैं what a devotee does. Okay, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. One more point. लीजिए, एक और आ गया, बताइए. Just like a business needs an investor to grow further, similarly for a bhakt, he needs a guru to grow further. Okay. Business needs investor. आप ये कह सकते हैं कि if we want to grow business, then we need a counselor or some expert who can guide us. Yes. Like that, like a mentor or like that. So similarly in our Krishna conscious journey also we need a mentor. Hare Krishna, Babuji, can I speak one more? Yes, Mataji. Z आ गया है, last आपका ही मोर लगेगी. So प्रभु जी, जैसे जब कोई नया बिजनेस जमाता है तो जो वेल विशर्स है या पेरेंट्स हैं, they encourage. So encouragement is required. Same in the Bhagavad Gita there. जो नया भक्त है उसको भगवान कहते हैं वो मेरा परम भक्त है, उसको ज्यादा प्यार करते हैं. उसी तरह से जो गुरु है अपने नए भक्त को ज्यादा प्यार करते हैं. So इसी तरह से बिजनेस में है कि जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो आपके वेल विशर्स आपको एनकरेज करते हैं. और अदरवाइज जैसे भक्ति में है कि डिवोटीज और जो गुरु है वो आपको एनकरेज करते हैं. ये कह रहे हैं कि जब भक्ति करते हैं, जब बिजनेस करते हैं, तो जो आपके वेल विशर है, मित्र दोस्त, वो आपकी हेल्प करते हैं कि चलो इनकी कुछ अगर हेल्प कर सकते हैं तो कर. एनकरेज करते हैं पेरेंट्स. हाँ? और भक्ति में क्या होता है माता जी, जब भक्ति करते हैं तो गुरु और भक्त है. हाँ, करेक्ट. आपको एनकरेज करते हैं. Yes. Now I understand. So he's saying, Ronnie Prabhu and Thank you, Prabhu. Hare Krishna. तो सरिता माता जी ने हमारा A से Z पूरा कर दिया. So कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे जो जान पहचान वाले हैं, और जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब भक्ति में शुरू करते हैं तो जो भक्त लोग हैं और जो डिवोटीज हैं, जो हमारे काउंसलर हैं, they try to encourage us. They also try to. Very nice. Very. So देखिए, आधा घंटा हमने चर्निंग की और आधा घंटा चर्निंग करने से हमें जो है ये कितने सारे देखिए पॉइंट मिल गए, और इसका हम टेबल बना के आपको हमारे ग्रुप्स में डाल देंगे, और उसमें अगर कोई फाइन ट्यूनिंग होगी तो भी करा दीजिएगा. ओके, अभी चैट में भी है. Ronnie Prabhu is saying business need advertisement, Krishna conscious needs preaching. Business needs advertisements,
Krishna conscious needs preaching, but business needs advertisement to grow, but Krishna consciousness doesn't need. आप ये कह सकते हैं प्रभु जी की जो business है, it grows from word of mouth, you know. Or similarly, you can take like that, कि business grows out of, a good business, grows out of word of mouth publicity. Similarly, जब आप भगवान की भक्ति अच्छे करते हैं तो आपका जो आचार है वही प्रचार बन जाता है. So just seeing our own behavior, our own thing, then it also people feel encouraged to ask you और ये क्या कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो आप इतने शांत हो गए, या whatever good qualities they see in us. चलिए ये भी हमने क्रॉस कर लिया. So अब बाद में चैट में भी देख लीजिएगा रॉनी प्रभु, you can copy and then we can make a table प्रभु जी, और इसका प्रभुपाद के पास और चर्न करते करते ना तो ये एक और A to Z हो जाएगा. हाँ नो प्रॉब्लम. जितना देखिए, जितना हम चर्न करते हैं, जितना मंथन करते हैं, उतना ही हमें उस जो श्लोक है उसका ध्यान आएगा, क्योंकि जब भी आप आगे से पढ़ेंगे आपको याद आएगा कि हमने तो 20-25 पॉइंट पढ़े थे, अब और अभी हमें 1-2 ही याद आ रहे हैं, लाइक दिस. सो जितना चर्न करेंगे, और ये श्लोक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है. अभी हम पढ़ेंगे परपट में कि व्हाट इज सो यूनिक अबाउट दिस परपट. सो रॉनी प्रभु, कैन यू stop that screen share? Thank you. So अभी तो हम जो है जो श्लोक है उसके पहली लाइन पे ही हमने मंथन किया है सिर्फ हम लोगों ने, और देखिए उसी में हमने तो व्यवसाय में का बुद्धिर एकः कुरुनंदना और बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः. So those who are on this path of are resolute in purpose. So resolute in purpose means, what is the meaning resolute? कि आपने दृढ़ निश्चय किया है. We are our determination is very solid, and their aim is one. Aim is one मतलब कि जैसे अगर आप 16 chapter 16 verse 16.16 उसमें आता है अनेक चित्त विभ्रांत. बुद्धि is not bewildered by many things. This I should do, that I should do, this I should not do, that I should not do, like this. और 18 chapter में भी भगवान ऐसे ही बोलते हैं कि जो I don't remember the verse कि जिनकी बुद्धि जो है अनेक चित्त is not there in Sakopa. और ये 16 है 16 इसमें अनेक चित्त विभ्रांत कि one is not perplexed by many things. One is resolute. O beloved child of Kurus, the intelligence of those who are irresolute is very vast. Because if we are bewildered and we are thinking many things, then ये भक्ति में भी होता है कि जब भक्ति में भी आते हैं, दूसरे बढ़ते हैं, then we don't know why I should do this. Then next day we feel encouraged कि आज ये करें, फिर लगता है नहीं मुझे भगवद गीता पढ़नी चाहिए, फिर लगता है नहीं भागवतम पढ़नी है. Then we feel some inspiring lecture. Then we feel नहीं मुझे चैतन्य चरितामृत पढ़नी है. Then one gets bewildered after a week or महीने 10-20 दिन बाद कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, like this, because mind is not stable. और जो लोग भक्ति में नहीं है, ये उनके लिए भी है because they are trying to enjoy from many sides. Then buddhi is not still, and then they can never they never have one aim. And that one aim हो भी तो it is never achieved. So अब परपट बढ़ते हैं तात्पर्य. A strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called व्यवसायिक intelligence. देखिए इतना सुंदर बोल रहे हैं प्रभुपाद कि a strong faith कि अगर हमारी जो श्रद्धा है दृढ़ है, that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called व्यवसायिक intelligence. कि अगर हमें इसमें पूरा हमें दृढ़ विश्वास है कि भक्ति योग करके या कृष्ण कॉन्शियसनेस अप्लाई करके I will be elevated to the highest perfection of life. So that is called व्यवसायिक.
आई नो कि मैं जिस पाथ में हूँ यही सही पाथ है, अब मुझे उस पर पूरा यकीन है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, द चैतन्य चरितामृत मध्य 22-62 स्टेज, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। फेथ मीन्स, अभी देखिए ये फिर से चैतन्य चरितामृत से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, श्रद्धा का मतलब क्या है। Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not. Oh, जो श्लोक है वो इसका तात्पर्य इसका नहीं है, जो श्लोक है उसका प्रभुपाद उसका प्रमाण दे रहे हैं। श्लोक भी इवन खोल लेते हैं। I'm sorry, I'll open the श्लोक मध्य 22-62। श्लोक भी पढ़ लेते हैं। श्लोक में क्या है, मध्य 22-62। I'm just opening the श्लोक। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं। मैं ये Ronnie Prabhu, can you please allow me to do screen share? Thank you. ये देखिए, पढ़ पा रहे हैं? कितना सुंदर ये श्लोक है। देखिए, जो बता रहा है कि श्रद्धा का मीनिंग क्या है चैतन्य चरितामृत से। सो फिर से पढ़ते हैं। देखिए, यू कैन सी, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। Shraddha is confident, firm faith that by rendering transcendental loving service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. Such faith is favorable to the discharge of devotional service. श्रद्धा क्या है कि दृढ़ निश्चय है कि भगवान की सेवा करके या कृष्ण कॉन्शियसनेस अपना के और प्रीति पूर्वक अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, सो ऑटोमेटिकली जितनी भी बाकी जो भी सारी हमारे जो धर्म है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटी है, वो सारी पूरी हो जाती है। और सच फेथ इज फेवरेबल टू द डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि अगर हमारे मन में ऐसा अगर दृढ़ निश्चय है तो इट इज वेरी फेवरेबल और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बड़ा फेवरेबल। इसका तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। फर्म फेथ एंड कॉन्फिडेंस आर कॉल्ड श्रद्धा। When one engages in the Lord's devotional service, he is to be understood to have performed all his responsibilities in the material world. He has satisfied his forefathers, ordinary living entities, and demigods, and is free from all responsibility. Such a person does not need to meet his responsibilities separately. It is automatically done. Fruitive activity, karma, is meant to satisfy senses of the conditioned soul. However, when one awakens to Krishna consciousness, he does not have to work separately for pious activity. The best achievement of all fruitive activity is detachment from material life. And this detachment is spontaneously enjoyed by the devotee firmly engaged in Lord's service. The line पढ़िए, बहुत जरूरी है। देखिए, the best achievement of all fruitive activity is detachment from material life. And this detachment is spontaneously enjoyed by devotee firmly engaged in the Lord's service. अब इसको लाइन को, एक बहुत सुंदर लाइन है। देखिए, इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। एक ये कह रहे हैं कि अगर ये जो डिटैचमेंट है, जो वैराग्य है, वो अपने आप जो भक्तों में आ जाता है, उस भक्त में जो भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है, who is firmly engaged, जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है। तो इसका एक मीनिंग क्या ले सकते हैं कि अगर हम मटेरियल अटैचमेंट है, अगर हमारे पास अभी भी है, इसका मतलब कि हम ठीक से भगवान की सेवा में नहीं जुड़े हुए। और दूसरा ये ले सकते हैं इसका मतलब कि अगर हमने कि जो मटेरियल लाइफ है उसमें हमें जो भक्त है
उनको अलग से डिटैचमेंट वैराग्य नहीं लेना पड़ता। तो मुझे कौन बताएगा कि उनको अलग से वैराग्य क्यों नहीं लेना पड़ता? Why they don't feel they don't have to do a separate endeavor for detachment? भक्तों को who will tell? और अगर आप में से कोई वो श्लोक बताएगा so then 10 out of 10. But मुझे जनरल बताइए कि why devotees don't have to endeavor for detachment separately? Yes, Amit Prabhu. Hare Krishna. Yes, Amit Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, because he got the higher taste. When one achieves the higher taste, he leaves the lower one. So when he achieves the higher taste of bhakti, so lower taste material attachment goes automatically. Okay. Yes, Parmeshwari Mataji. यस प्रभु, अमित शर्मा प्रभु जी ने ठीक बोला। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। Okay. Okay. Yes. Ashok Prabhu or Asha Mataji who's asking. हरे कृष्ण प्रभु जी, जस्ट ए थॉट कि जैसे हम भक्ति करते हैं तो भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है, तो वो हमारी कॉन्शियसनेस मतलब प्योरीफाई करते जाते हैं, तो उससे हमारी जो अटैचमेंट होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है चीजों में। एंड ठीक है। सो जो आंसर बताया अमित प्रभु ने और परमेश्वर माता जी ने बिल्कुल सही है, दोनों को 10 में से 10। और आपने श्लोक नंबर नहीं बताया मुझे, 10 में से 9.5 ही मिलेंगे। 2.59। 2.59। थैंक यू माता जी। सो ये श्लोक याद रखिए हमेशा, परम दृष्टा निवर्तते। ये 2.59 है कि as one get higher taste, the lower taste is already gone। और ये हम लोगों का सबका अपना हमारा जो निजी जो एक क्या कहते हैं एक्सपीरियंस भी रहा है हमारा ये कि जब हम भक्ति में आते हैं, सो जो लोअर टेस्ट है एटलीस्ट द ग्रॉस वंस दे आर ऑटोमेटिकली गॉन। उसके लिए आपको सदा प्रयास नहीं करना पड़ता है, रादर सटल जो इश्यूज हैं बाद में टू अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस करने के लिए वहाँ स्ट्रगल ज्यादा रहती है, और जो ग्रॉस हैं सारे के सारे दे आर गॉन। व्हाई? बिकॉज वी गेट ए हायर टेस्ट। So, param drishta nivartata. So that is the answer. Thank you, Mataji. Thank you, Amit Prabhu. Okay, so we are back to our reading. So हम ये अभी पहली लाइन ही पढ़ रहे हैं। तो faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with the obligations of family traditions, humanity or nationality। तो चाहे वो पितर का हो, पितृ ऋण हो, देव ऋण हो, मनुष्य ऋण हो, कुछ भी हो, then no duty is left अगर if we are fully engaged in Krishna consciousness। Fruitive activities are the engagements of one's reaction from past good or bad deeds। ये हमें मालूम है कि जो भी हमारा जो शरीर भी मिला है ये भी उसी का ही रिजल्ट है, जो हमने पूर्व कर्म किए हैं उसी के रिजल्ट से हमें ये शरीर मिलता है। When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good result in his activities। देखिए कितना सुंदर है। When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities। When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they no longer subject to the dualities like good or bad। क्योंकि जो पायस काम करते हैं, अगर हम पायस एक्टिविटीज करते हैं और तो उसका जो फल है वो भोगना पड़ता है, उसके लिए भी भोगने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और जो भगवान की जो भक्ति है, जो भगवान की सेवा है, that comes on the transcendental platform, so there is no good or bad in it। तो हमें ये नहीं देखना पड़ता कि ये कर्म है कि विकर्म है, बल्कि ये जो है सारा का सारा it is on an absolute platform, transcendental, it's all bhakti। Even at the sadhana level, कई बार भक्त सोचते हैं कि अभी तो मैं साधना लेवल पे ही हूँ, but ऐसा नहीं है। Even at sadhana level, what we are doing is on the absolute platform। It may be mixed with gunas, but it is on the absolute platform। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, the highest perfection of Krishna consciousness is a renunciation of the material conception of life। देखिए ये क्या है? The highest perfection of Krishna consciousness is a renunciation of material conception of life।
What is the meaning of material conception of life? Who will tell me? What is the meaning? What is the meaning of material conception of life? Yes, Ashok Prabhu. Sorry, Prabhu ji, previous वाला raise किया हुआ था hand, but anyway we can try to understand कि like I am not this body, but I am a soul. So once I leave this body, मतलब if I am doing bhakti or doing service to the Lord, then I can go back to the Godhead. Yes. Yes. It is material conception of life means कि everything. Thank you, Prabhuji. Everything revolves around my body. Aham mimeti, me and those who are connected with my body. So that is a material conception of life. और जहाँ पर हमें भगवान के या सोल के बारे में कुछ नहीं मालूम. और रानी प्रभु ने लिखा है चैट पे, I am this body and not soul. Sorry, I am this body. Sorry, I am not this body but soul. Yes, correct. कि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, बल्कि everything revolves around aham mimeti, me and mine. This state of आगे पढ़ रहे हैं. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. तो कह रहे हैं इसके लिए इस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको कुछ अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है, बल्कि जैसे जैसे आप भक्ति में रहेंगे और आप श्रवणम कीर्तन करते हैं, ये स्टेज अपने आप पहुंच जाती है. The resolute purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. The resolute purpose, so it is not based upon sentiments. कई लोग सोचते हैं कि जो भक्ति योग है, प्रभुपाद लिखते हैं बहुत बार, लोग सोचते हैं भक्ति योग जो है ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनको कोई फिलॉसफी का, दर्शन का ज्ञान नहीं है, जो उपनिषद नहीं पढ़ सकते हैं, and they are sentimentalist. So ऐसा नहीं है. भक्ति योग is based completely on knowledge, शास्त्रिक knowledge. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. अब प्रभुपाद कोट कर रहे हैं ये 7वें अध्याय से, कैसे कि जो भगवद गीता जो है स्वयं बोलते हैं, भगवान बोलते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. जिसको ये पता चल गया कि कृष्ण ही भगवान है, वही सबके हैं, वही आदि है और वही अंत है सबके. So then that person is a महात्मा. That is the definition of महात्मा. वासुदेव की सब कुछ जो है वो भगवान से आया है, और जिसको ये और सब कुछ जो है वो भगवान के कंट्रोल में है, वही परम नियंता है. तो इसको ये समझ में आ गया कि इस महात्मा. So it is not sentiment, it is based upon शास्त्रिक knowledge. आगे लिखते हैं प्रभुपाद, a person in Krishna consciousness is a rare good soul. महात्मा को प्रभुपाद कन्वर्ट ट्रांसलेट कर रहे हैं रेयर गुड सोल. ये उसका क्या कहते हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रभुपाद. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः. A person in Krishna consciousness is the rare good soul who knows perfectly that Vasudeva or Krishna is the root of all manifested causes. Sarva karan karma. As by watering the root of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches. So by acting in Krishna consciousness, one can render higher service to anyone, namely family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's action, then everyone will be satisfied. Service in Krishna consciousness is, however, best practice under the able guidance of a spiritual master who is a bona fide representative of Krishna. अभी देखिए हर एक अध्याय में, हर एक तात्पर्य में प्रभुपाद बार बार इसी चीज को कहते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस शुड नेवर बी डन इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब है कि हम अपने मन की बात सुन रहे हैं, या मैंने 6 लोगों से पूछ लिया जो मुझे अच्छा लगा, उसमें से मैंने वो कि मैंने एक ही चीज 6 भक्तों से, कई बार शुरू में ये मुझे भी मेरे में भी बहुत बुरी आदत थी पहले कि मैं एक ही चीज 6 लोगों से पूछता था और जो मुझे ठीक लगती थी वो मैं पिक कर लेता था कि चलो मैंने डिवोटी से पूछ लिया. बट इट्स अ वेरी बैड हैबिट. कई बार कृष्ण लोगों से बहुत डांट पड़ी थी, शुरू की बात है, फिर थोड़ी सी मुझे अकल आई. सो वन शुड ऑलवेज डू practice under the guidance of a spiritual master. Unless we take shelter of, we should have one devotee at least जिसके shelter में लेके हम काम कर रहे हैं. और अगर हम अलग अलग करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, we will find the road becomes much more sharper, more fun, more focused.
और ऐसा नहीं है कि जो जिनका हमारी तरह मूड नहीं है वो भी भक्ति में बढ़ रहे हैं, उनका वो गलत है, नहीं, बल्कि जो हमारा इच्छा है, जो हमारा जो मूड है, we have to see कि some senior devotee in that mood and that follow, take guidance from that devotee, and then we will make progress. But if you see, oh, he said like this, or that other devotee said that, or the Bhagavatam class somebody said like that, so then we will be always be bewildered what is right, what is wrong. और इसमें जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैंने आपको बार बार आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो है कि हमारे आचार्य से सुनने का, कि अगर हम अपने आचार्य का जो है लेक्चर सुनते हैं, so then it has effect because we know what is coming from आचार्य is absolute truth. उसको किसी भी तरह से आप सुनते हैं, it is everything is absolute. तो बहुत जरूरी है कि प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए, उनकी हिंदी में भी हैं लेक्चर्स, अगर किसी को चाहिए है तो हमसे कह सकते हैं, we can give it on a Google Drive, और इंग्लिश के लेक्चर भी हैं, हमने पहले भी ऐप्स दिए हैं. सो मेरी आप सब लोगों से यही प्रार्थना, जितने गुरु हैं देखिए हमारे इस्कॉन के अंदर, वो भी सब आपको हमेशा यही बोलेंगे प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, वही हमारे प्राइमरी शिक्षा गुरु हैं और उन्हीं के हम शरण में हैं. तो बहुत जरूरी है वो कनेक्शन बना के रखना हमारे फाउंडर आचार्य से. सो आई विल पॉज इट हियर, देयर इज लिटिल बिट बट बिकॉज वी आर ऑलरेडी क्रॉसिंग द टाइम. सो ये करेंगे और इस पर थोड़ा सा, क्योंकि ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे जो है हम अपनी जो चर्चा है वो कल हम अपनी कंटिन्यू करेंगे इसको. ठीक है. So I think anybody has any question or comment, otherwise we'll end the class now. So और इसको प्लीज आप अगर टाइम मिले तो ये जो श्लोक है और जो हमने आज पढ़ा है इस पे थोड़ा सा मंथन करिए, और जब हम आएंगे कल तो आप शेयर कर सकते हैं कि आपको कुछ और निकला, कुछ और आपको समझ में आया, तो हमसे प्लीज शेयर करिए. और we'll try, Ronnie Prabhu, can we try to make the table by tomorrow, before tomorrow evening class? You can give this service to somebody. अगर कोई टेबल बनाना चाहता है तो और बना सकता है, जो हमने 26-27 पॉइंट डिस्कस किए, तो आप रॉनी प्रभु से कांटेक्ट कर लीजिए, and then he will give the service. Then make a table like that. So I can't hear Ronnie Prabhu, you are on the mute. So, yes Prabhu. So उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा. We want to make a nice table. This is a कि ये पॉइंट है, बिजनेसमैन ये करता है और डिवोटी ये करता है, लाइक दैट. ओके ब्रो. सो थैंक यू सो मच. वी विल एंड द क्लास नाउ. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु. थैंक्स. हरे कृष्णा प्रभु जी.